In an arranged marriage, does attraction grow over time or one should be attracted before? Lies repeatedly, got trust issues, I communicated and yet lied, I quit, she wants back, I don't. How to be in happy relationship with emotionally immature person. He is changing after marriage because of family, specifically his mom. Okay. हमारी शादी मार्च 2024 में हुई और हमारी लड़ाइयाँ बहुत होती है, मतलब बहुत छोटी छोटी बातों। How to make your marriage work when your partner doesn't stand up for you because it's not his nature. Yo guys, what's up? Welcome to another episode of Happily Whatever After. So we have reached season 3 of our podcast, and in all of this, a lot of you guys have been sending us requests to do an episode on certain things. You've been sending us your relationship questions and you have been wanting to connect with us one-on-one. लेकिन हम तो है दो और आप लोग हो इतनी बड़ी फैमिली, सो वी डिसाइडेड दैट सिंस हम वन ऑन वन सबसे बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं और हम लोग सिर्फ 2 लोग हैं और आप लोग अब हमारे टोटल मोर देन 90 के फैमिली हो, सो इन ऑर्डर टू रीच ईच एंड एवरी वन ऑफ यू वी डिसाइडेड टू डू अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन अबाउट रिलेशनशिप्स, सो दैट इवन दो हम पर्सनली आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, सो वी कैन स्टिल try to help you this way. Thank you so much first of all for sending us questions. We will try to cover as many of them as we can, or if not then we will do another episode on it. So without wasting any time, let's begin and answer all your queries. As usual करण का फोन है लेकिन मुझे उसके पासवर्ड पता है. We both are on an open phone policy because we have nothing to hide. Do you? Okay, let's begin. सबसे पहला क्वेश्चन है, lies repeatedly, got trust issues, I communicated and yet lied, I quit, she wants back, I don't. ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है. आई थिंक ये मोस्ट प्रोबेबली हर फेज में होता है रिलेशनशिप के, वेदर यू आर अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वेदर यू आर अ हस्बैंड एंड वाइफ, और वेदर यू आर सपोज टू गेट मैरिड. ट्रस्ट इज समथिंग शो, वो जो बोलता ना कि ऐसी चीज है रिलेशनशिप में अगर वो टूट जाती है तो उसको बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. इट इज द मोस्ट डेलिकेट पार्ट ऑफ योर रिलेशनशिप. इफ योर पार्टनर हैज ब्रोकन योर ट्रस्ट, यू विल ओनली कम टू एक्सेप्ट देम इफ दे शो यू इन एक्शन दैट दे कैन probably get back your trust. अगर आपका ट्रस्ट टूटा और आपके पार्टनर ने repeatedly वो किया है तो technically there is an habit which your partner needs to realize, he or she needs to understand that if this continues the relationship will not move forward. Yeah. Because it is not possible at any cost that one partner struggles and he always feels betrayed in the relationship and you still feel that you will be okay in the relationship. It cannot happen. और अगर रिलेशनशिप शुरू भी होगी तो वो बहुत 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 ज़्यादा मेहनत के बाद ही चल पाएगी एंड मेहनत लगेगी उस पार्टनर से जिन्होंने झूठ बोला था. Yes. So if that is not happening, if they are not willing to put in that effort, then nothing can be done. Even if you guys try, it will not work out. If the partner who has lied is not willing to put in 200% of their effort to fix things, to make you gain their trust back, and remember it forever guys, forever in your life, that झूठ in a relationship is like दीमक. आपको पता नहीं चलता है लेकिन वो बढ़ता जाता है और अंदर से खोखला कर देता है, राइट? दैट इज व्हाट हैपेंस जब दीमक लगती है किसी चीज में. सो झूठ इज लाइक योर रिलेशनशिप का दीमक. आप एक झूठ बोलोगे, उसको छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे. सो प्लीज 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 कीप एवरीथिंग ट्रांसपेरेंट, कीप एवरीथिंग क्लियर विथ योर पार्टनर. डोंट रिसोर्ट टू लाइज. आई होप दिस हेल्प्ड. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारी शादी मार्च 2024 में हुई और हमारी लड़ाइयाँ बहुत होती है, मतलब बहुत छोटी छोटी बातों पर. Okay. Welcome to the first year of marriage. This happens to all of us and I mean to say universally all of us. Okay, वो कोई भी इंसान हो. First year of marriage is not the honeymoon phase we were all told about. Okay, yes. It was a bunch of lies. हमको बहुत सफेद झूठ, मेरी साड़ी की तरह सफेद झूठ बोला गया था कि देखो शुरू में तो सब अच्छा होता है, शुरू में ही तो सारी प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि तुम लोग पहले कभी साथ में ही नहीं रहे हो, क्योंकि तुम लोगों ने एक दूसरे की पर्सनैलिटी इतना क्लोजली कभी देखी ही नहीं है. सो ये
झगड़े होते रहेंगे, बट द मेन पॉइंट इज झगड़ों के बाद क्या होता है। So, झगड़ों के बाद विल बी द एक्चुअल स्टार्ट ऑफ योर रिलेशनशिप। आप जब पहले साल में होते हो तो मोस्टली आप झगड़ते हो। उस समय आपको ये सोचना है कि मैं अपने रिलेशनशिप को छोड़ दूं या मैं रिपेयर करूं। जब तक आप रिपेयर नहीं करोगे अपने रिलेशनशिप में, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो जब भी आप अपने पहले साल में शादी के हो और जब आप लोगों की फाइट हो रही है, तो आपको सबसे पहले तो ये सोचना है कि फाइट्स होने के बाद वो फाइट को रिपेयर कैसे किया जाए। आपको आपके पार्टनर के साथ बैठना पड़ेगा, उनके साथ डिस्कस करना पड़ेगा कि आप क्या इश्यूज फेस कर रहे हो, आपको क्या फील हो रहा है, आपको जब हर्ट फील हो रहा है, आपको जब नेग्लेक्टेड फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है आपके साथ में कोई भी नहीं है। ये जो प्रॉब्लम होता है ये फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज में क्यों होता है? क्योंकि आप लोग एक ऑल टुगेदर नई लाइफ स्टार्ट करते हो। मतलब कि आप लोगों के लाइफस्टाइल इश्यू होना चालू हो जाएंगे, आप लोगों के इन लॉज इशू होना चालू हो जाएंगे, आप लोगों के टाइमिंग्स इशू होना चालू हो जाएंगे, आप लोगों के जो छोटी छोटी चीजें जो आप लोग ने नहीं सोची होगी कि ऐसा भी होता है शादी में, वो होना चालू हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपने रिलेशनशिप को छोड़ दोगे, आप अपने मैरिज को तोड़ दोगे और बोलोगे नो आई कैन नॉट लिव विद दिस पार्टनर। द ओनली सॉल्यूशन हियर इज दैट आप अपने पार्टनर के साथ बैठिए, हैव अ बेटर कम्युनिकेशन, स्टार्ट कम्युनिकेटिंग वेयर यू टॉक टू योर पार्टनर अबाउट योर फीलिंग्स। अपने पार्टनर को छोटी छोटी चीजें जो आपको हर्ट कर रही है, अपना कम्युनिकेशन डेवलप कीजिए जो आपके मैरिज को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। जो बेसिकली आप बोल रहे हो ना कि छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होता है, यू नीड टू रियलाइज कि जब झगड़ा होता है ना तो उसके पीछे किसी की एक कोर नीड छिपी हुई होती है। तो अगर आपका झगड़ा मेन किसी बड़ी चीज के ऊपर नहीं हो रहा है, इतनी छोटी सी चीज पे हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि तुमने मुझे आज पूरे दिन में कॉल नहीं किया, तो कॉल नहीं किया is not the problem. The problem here is the partner is wanting to connect with you during the day. That is their core need. So you need to sit and talk to each other कि मेरी नीड क्या है, मुझे ये गुस्सा क्यों आया, या मैं इस वक्त यहाँ पे क्यों चिल्लाया। 3 तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक ये हो सकता है कि आप अपने किसी बचपन के या अपनी फैमिली का कोई पैटर्न रिपीट कर रहे हो कि आपने देखा है कि हाँ ओके इस बात पे लड़ाई हो सकती है तो इट्स नॉर्मल फॉर यू, सो यू जस्ट टॉक इन अ सर्टेन वे। या फिर आपने ये देखा है कि आपको कोई चीज बचपन से चाहिए थी जो अब आप एक्सपेक्ट करते हो अपने पार्टनर से और वो आपको नहीं मिल रही है, विच इज वाई यू आर गेटिंग सो वर्कड अप अबाउट इट इन इवन स्मॉल इश्यूज। या फिर तीसरा, इट कुड बी दैट यू गाइज वर नॉट प्रिपेयर्ड कि शादी के बाद कितना एफर्ट लगता है टू एग्जिस्ट विद अ डिफरेंट पर्सन, to exist with a completely new setup of people, new setup of house, and hence आप वर्कअप हो रहे हो, आप इमोशनली रेगुलेट नहीं हो पा रहे हो और फिर हर छोटी छोटी बात पे झगड़ा होते जा रहा है। तो यू हैव टू अज्यूम गुड इंटेंट फॉर योर पार्टनर। यू हैव टू अज्यूम दैट जब भी आपका पार्टनर कुछ बोल रहा है जिससे झगड़ा हो रहा है, आपको ये मन में ये बात सोच के चलनी पड़ेगी कि मेरा पार्टनर मेरा बुरा नहीं चाहता। अगर आप उनको दुश्मन की तरह देखने लगोगे तो ये छोटे छोटे झगड़े बहुत बड़े हो जाएंगे और आप दोनों के बीच में बहुत दूरियां आ जाएगी। फर्स्टली, डू नॉट पैनिक, ऐसा सबके साथ होता है। सेकेंडली, इन झगड़ों को रिपेयर कैसे किया जाता है उस पे फोकस करना है। और थर्डली, आपको ये डिटेक्ट करना है कि इस झगड़े के पीछे मेरी कोर नीड क्या थी। ऑल्सो अगर आप लोगों को समझना है कि फर्स्ट ईयर में होता क्या है तो हमने बहुत सारे एपिसोड्स किए हैं, यू कैन चेक आवर पॉडकास्ट। देयर इज अ होल प्लेलिस्ट राइट हियर अबाउट स्ट्रगल्स इन फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज दैट Karan and I faced. Yes. So here you go. So moving on to the next question. In an arranged marriage, does attraction grow over time or one should be attracted before? इसका आंसर मैं देना चाहूंगा शो। इसको स्टार्ट करूंगा। अट्रैक्शन आई बिलीव इज अ पार्ट ऑफ आई थिंक रिलेशनशिप साइकिल। लव मैरिज में ऑब्वियसली ऐसा होता है शो दैट कि यू गेट अट्रैक्टेड टू समवन, यू बोथ लाइक ईच अदर एंड देन यू ट्राई टू बी विथ ईच अदर, you build a relationship together and then you decide to get married. But when it is an arranged marriage में आपको वो बंदे के बारे में या बंदी के बारे में पता नहीं होता है। You don't know where and how that person has been born and brought up. You don't know what has happened. जब भी arranged marriage होता है तो वो जो courtship period भी होता है उसमें कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है कि पेरेंट्स ने चूज किया है या हमारे बड़े क्या बोलेंगे हमको। उसमें इट इज बाउंड दैट कि आपका जो अट्रैक्शन होगा वो बहुत लेटर स्टेज पे आएगा, वो बहुत स्लो शुरू होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप फर्स्ट दिन पे ही उनको चाहना चालू कर दोगे, बिकॉज देन यू फील दैट कि नो दिस पार्टनर इज नॉट लाइक मी। यू समटाइम्स डाउट वेदर आई एम अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन और वेदर आई एम नॉट अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन।
I would like to break it down to what we mean by attraction. Usually हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही टाइप का अट्रैक्शन होता है कि फिजिकल अट्रैक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. तो ऑनेस्टली अगर फिजिकल अट्रैक्शन है भी तो ओवर टाइम वो चेंज हो जाएगा. ओके, सो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. लाइक आई हैड अ ह्यूज क्रश ऑन दिस मैन, बट एट द एंड जब हमारी शादी होने वाली थी तो वो सारा क्रश वश सब साइड में धरा रह गया. राइट, सारी प्रॉब्लम, सारी बातें इवेंचुअली बॉइल्स डाउन टू व्हाट काइंड ऑफ compatibility you guys have, what kind of understanding you have. So I think there is also another level of attraction which is intellectual, which Yeah, is emotional more attraction. emotional. Yeah, तो वो तो लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो वो तो धीरे धीरे ही बिल्डअप होगा आपके बीच में. अकॉर्डिंग टू अस इट्स नॉट अ रिटन रूल एनीवेयर कि आपको अट्रैक्शन होना जरूरी है, लेकिन देयर शुड बी समथिंग दैट यू लाइक अबाउट द पर्सन, देयर शुड बी समथिंग दैट यू रिस्पेक्ट अबाउट द पर्सन इज व्हेन यू गेट इनटू एन अरेंज मैरिज विद देम. आइडियली बिना कुछ सोचे समझे आंख बंद करके आप ना ही करें, तो क्योंकि better है. मैरिज इज फॉर लाइफ. इट्स नॉट अ टेम्पररी सिचुएशन, इट्स नॉट अ रिलेशनशिप कि जब चाहा तब हम लोग ब्रेकअप कर देंगे. सो प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हेन गोइंग थ्रू एन अरेंज मैरिज सेटअप. एंड ऑन दैट note, we have done a detailed episode between us and the IITian couple, okay, and that episode is linked here. It's literally called Love Marriage versus Arranged Marriage, so please go ahead and check that episode here. So we will go to the next question. Okay Karan, ये तो आप ही जवाब दे सकते हैं. बताइए क्या क्वेश्चन है. How to be in happy relationship with emotionally immature person. Okay, guys, it's a very difficult question to be answered. I think it is very difficult to be in an emotionally unavailable, to be in a immature partner. मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारे रिलेशनशिप में मैं इमोशनली इमेच्योर पर्सन था. मैंने अपने ऊपर काम किया और तुमने एक्चुअली मैं बोल दिया था कि नो, आई डोंट वांट टू लिव विद यू बिकॉज़ so आई वाज that is your answer. How to be happy in relationship with an emotionally immature person? You cannot be happy in a relationship with an emotionally immature person unless and until that person decides to grow up. So जो इमोशनली इमेच्योर पर्सन है आपके रिलेशनशिप में उनको मेहनत करनी पड़ेगी. They will have to start understanding the needs of your value system. They will have to understand that what are your needs in the relationship. ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ आप ही अपना 100% उस रिलेशनशिप में डालो और जो सामने वाला बंदा है वो बोल रहा है हाँ जैसे चल रहा है रिलेशनशिप वैसे चलने दो. मोस्टली ये हमारा प्रॉब्लम होता है. The men which we have, they are technically not that emotionally mature. They don't have emotional intelligence in general. बट ऐसा नहीं है कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस बना नहीं सकते. देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट एवरी मैन नीड्स टू डू टू गेट इमोशनली अवेलेबल टू देयर पार्टनर, बट इट इज नॉट लाइक कि वो नहीं हो सकता है. सो यस, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी इन अ रिलेशनशिप विद एन इमोशनली इमेच्योर पर्सन. एंड इफ दे आर नॉट रेडी टू चेंज देन इट इज टाइम फॉर यू टू टेक अ कॉल. यस. Okay, next one. How to make your marriage work when your partner doesn't stand up for you because it's not his nature? इसका भी आंसर मैं स्टार्ट करूंगा. Okay sir. नेचर नहीं है. पहली बात तो ये नहीं हो सकता. जो भी आपका पार्टनर है अगर वो आपके लिए खड़ा नहीं रह रहा है, which means there is an issue in their understanding that they are not understanding that when they have got married, it's their life altogether. उनको एक responsibility लेने की जरूरत है. Mostly in marriage what happens is that जब भी हमारी शादी होती है तो एक बंदा बोलता है कि नो, आई डोंट वांट टू टेक मोर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट द पार्टनर हैंडल. हमारे रिलेशनशिप में भी यही हुआ था शो इन द स्टार्ट दैट आई टेक्निकली टोल्ड शोकी दैट शोकी तू पूरी चीजें समझ ले, मुझे शादी करनी थी. आई वांटेड टू गेट मैरिड एंड हैव अ लाइफ पार्टनर हु इज स्ट्रांग, हु इज विथ मी, टेकिंग इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज विथ मी. बट व्हेन इट एक्चुअली केम टू लिविंग अ लाइफ इन अ मैरिड लाइफ, आई वाज लाइक कि शोकी तू सब कुछ देख ले, मैं कुछ नहीं करूंगा. नाउ दिस इज ऑल्सो कमिंग from how I was being raised as a child. It also is very very important to notice that कि आपका जो पार्टनर है उसका चाइल्डहुड कैसा रहा है, उसने कौन से तरीके की रिलेशनशिप देखी है, उसने कैसे तरीके की अपब्रिंगिंग रही है उस बंदे की. तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा जब भी ये इशू आता है that your partner is not taking a stand, they need to realize that the relationship is not going to work. They will have to start taking responsibility of the relationship. Also I feel like कि ऐसा नहीं होता है कि हम बोल दें कि ये तो हमारा नेचर नहीं है. If they are saying that they are clearly not willing to put in the effort and not willing to take up the responsibility like Karan said. If he is not taking a stand for you, firstly make him aware that he needs to. If he still refuses to do that, then please don't stop yourself from drawing boundaries. If he is not taking a stand for you, you take stand for yourself and draw your boundaries, ask for what you need and don't feel guilty about it because you tried your level best,
you tried to ask him to stand up for you. If he's not, then it's okay for you to stand up for yourself. लोग कुछ भी बोलेंगे, आप विलेन बनोगे, ये सब सोच के अपने आप को रोकते रहोगे, तो एनीवे आपके अंदर रिजेंटमेंट बिल्ड होता जाएगा, एनीवे आपकी मैरिज, आपकी रिलेशनशिप अफेक्ट होगी. सो इससे बेटर है कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि वो समझे, वो कोई स्टैंड ले, आप बार बार बोलते रहो, आपकी रिलेशनशिप में वो कलेश होता रहे, आप अपना स्टैंड खुद लेना सीख जाओ. Okay. लेट्स गो टू To द the next नेक्स्ट question. He is changing after marriage because of family, specifically his mom. Okay. जो तुम आंसर कर दो तो उसको. अब शुरू होता है सिलसिला. करण एक काम, ठीक है, एक बेट लगाते हैं. जितने क्वेश्चन ममाज बॉय के आएंगे ना, तो मुझे 100 रुपए देना. अरे बहुत क्वेश्चन है, मैं कंगाल हो जाऊंगा. लेट्स गो अहेड एंड आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज मोस्ट प्रोबब्ली. करना ट्राई तो कर. 100 रुपए दे तो सही. चल ठीक है, तू 100 रुपए चल ले मेरे से. चल ठीक है, 100 रुपए दे दिए तेरे को मैंने. So basically I want to tell him, आपको ये पहले नहीं पता था कि शादी होने वाली है मेरी, शादी के दिन भी नहीं पता था कि शादी होने वाली है मेरी, और आपके अब सडनली आपके श्रवण कुमार के ट्रेट्स जाग गए. सडनली अब आपको मम्माज बॉय, मम्मी के पल्लू में बंद के रहना है. तो पहली बात तो आपने शादी क्यों करी थी, ठीक है. सेकेंडली अब अगर कर ली है तो एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रहा है, डाइजेस्ट क्यों नहीं हो रहा है कि शादी हो गई है. अब सडनली अगर आप चेंज हो रहे हो तो फिर इट इज नॉट फेयर टू योर पार्टनर, इट इज नॉट फेयर टू योर रिलेशनशिप, इट इज नॉट फेयर टू द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. Yes. ओके, दिस इज योर लाइफ पार्टनर दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज योर मैरिज फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. अगर आपको अपने मम्मी के पास ही रहना है, अगर आपको अपनी मम्मी की ही बात सुननी है, तो ये आप अपनी वाइफ को क्लियरली बता दो, सो दैट शी कैन डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन द रिलेशनशिप. ओके, and if you are changing like this for your parents and not for your wife after marriage, then I'm really sorry to say this, but you have not understood the meaning of getting married. Yes, I think ये बहुत ही important चीज़ बोली है कि as a man you need to understand and take responsibility of your married life. बचपन से हमको नहीं सिखाया जाता है कि शादी के बाद आपको खुद अपनी लाइफ के बारे में डिसाइड करना होता है, आपको खुद अपनी बाउंड्रीज डिसाइड करनी पड़ती है. आपको पता होना चाहिए कि आपके पार्टनर और आपका वैल्यू सिस्टम क्या है. जब तक आप दोनों का वैल्यू सिस्टम आप लोग नहीं क्रिएट करोगे, अपने पार्टनर के वैल्यूज नहीं जानोगे, एक दूसरे के बारे में नहीं जानोगे, आप एक स्टैंड नहीं ले पाओगे. तो स्टार्ट हैविंग बेटर communication, start understanding your partner's value system and take responsibility of your own married life. Your parents are not going to live your married life. आप, आपकी बीवी और आपके बच्चे तीनों मिलके ही ये मैरिज को सक्सेसफुल बना सकते हैं. थर्ड पार्टी issues which are from your parents, which are from your relatives, which are from your friends, they should not matter you while taking a decision for your married life. Also, to the person who has asked this question, if he is changing a lot after marriage, you need to very nicely, politely, without blaming him or his mother, explain to him that you feel alone, you feel isolated. Use I statements that I feel like this when this thing happens. Don't say I feel like this when you and your mom talk or get together. No blaming. You have to use I statements. You have to lead with your feeling. Lead कि आपको क्या feel हो रहा है, and try to talk to them at a time when they are calm and composed. Not at a time when अभी आपकी फाइट हुई है, आपको अभी बात करनी है, आपको अभी सारा रायता फैलाना है. डोंट डू दैट. ओके, डोंट ट्राई टू टेल हिम दैट दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग. द मोर यू ट्राई टू टेल हिम दैट, ही विल फील दैट ही इज गेटिंग जज्ड and he will shut down. So you need to talk to him at a calm time and tell him why you are feeling that he's changing. Point out stuff in a nice way, in a simple way, to tell him that when you are going to be with me, I would need these kind of things from you. Okay, clear your expectations and tell him you are feeling alone, you are feeling isolated, so that he looks at it as a problem that he can solve instead of feeling like it's an attack on him and his family. Okay, I hope that will help. So that's it guys. I think so ये never ending questions है. I hope you guys have got the answers for your questions. We will try to also do another episode if possible soon with the remaining questions and also new questions which will come in when we will post on Instagram soon. So please do like, share and subscribe. We are available on all social media platforms. I hope this episode was helpful even for those people who did not ask the questions. And what are some more questions that you might have? Tell us in the comments. We'll try to answer it in the next episode.
And if any of these issues are becoming too real for you and you need one-on-one help with us, then the link to book a one-on-one relationship coaching session with Karan and me, links are given below. You can click on them and book your session now. So we will see you next week with some more answers, with some more solutions to your problems. And till then, we are with you In happily whatever after. See you guys. Bye bye. Take care.